can be according. GST and SGST. Uh, he has been, doing a lot of social activities. He is a chief advisor at National Real Estate Development Council. Mr. Ladda is also a chairman of GST advisory of NIRC, Institute of Cost Accountant of India. He has also served as a co-opted member on indirect tax of CIRC of ICI. He is a founder member of Student Forum at Bombay Chartered Accountant Society, and he is a past president of Rajasthan Vidyarthi Gruha Student Committee at Mumbai. With this, I welcome Vivek ji and request him to take the session. Before he takes the session, may I request the honorable chairman to offer a memento as a mark of our appreciation towards him. I'll request all RCM to join. Before Vivek Ladda sir, I request the chairman of GST and Indirect Tax Committee, Gautam Bhai, to share his thought in briefly. So this is just for all of you. We have now engaged into some sustainable concepts as our mementos. Just for you. These are paintings by mentally challenged students, kids with their foot and mouth. They are handicapped also, as we call them Divyangjan, and they're mentally differently able. So differently able, and that is what they have prepared this, and this is what we are trying. Great initiative. Quickly you can cover, and then we will start. Definitely. So hello everyone. A very good afternoon or good evening. There are a couple of things I just wanted to talk about as a GST committee of WIRC we are doing over here under the leadership of our chairman, C. Arpit Kabra ji. So we have just finished the GST sectorial series. Now we are coming up with GST litigation series. Soon it will be launched. So all the aspects of GST litigation we are covering. Last month we met CST, Commissioner of State Tax Maharashtra, where we have represented that audit should be allocated to Chartered Accountant under Section 67 special audit, and Chartered Accountant should be appointed as an expert. Principal Commissioner has in principally agreed to appoint Chartered Accountants. We at WIRC are working out a panel, Chartered Accountant with state GST authorities. Similar exercise we will be taking in Gujarat and Goa also. It will help, it will create more opportunities for our members at large in GST. Apart from that, we are also launching GST certification course from 20th May, which will be a flagship certification course of ICI in this building only at ICI BKC. And there are much more, we will be launching our RRC. So a lot of activities we are doing at GST committee. Apart from that, at regular interaction in our drive to interaction with regulator, we have organized various trainings for GST officers.
we are also in discussion to develop a content for GST officers where they can be trained regularly. So WIRC is taking an initiative for development of that content as well. So these are few initiatives of GST committee of WIRC of ICI. I thought I'll highlight without taking much of time. This is a very timely decision, Chairman sir. This is much needed decision. I would say a lot of myths, or I would say messages are going on WhatsApp that this will happen. GST officer are coming. Ye chahiye, wo chahiye. Recently, we have seen Andhra Pradesh circular as well that you need not to worry. You can complain to higher authorities. I'm sure a lot of fear is there in trade. I myself have received 100+ calls that what is going to happen. So there's a lot of fear in the industry, and I'm sure with the learned speaker we have today, Vivek Bhai, he's definitely going to cover all the aspects. He's going to cover all the myths, what people are facing right now and the challenges people are facing. So without taking much of time, over to you, sir, for your deliberation. Thank you. Thank you. Thanks a lot to the office bearer of WIRC of ICI. This is a very unique topic which we are going to cater today, and which is of course a need of an hour. Now, let me be on the topic. As you all know that the instruction has been issued by CBIC in name of Special All India Drive Against the Fake Registration. So, we all understand that, GST law already contains number of provisions pertaining to the physical verification, which is to be conducted at the place of the registered person. We all know that we have 3 set of provisions with us. Rule 25, physical verification at the time of before granting the registration, and also after granting the registration. Further, we have section 67, subsection 1 and subsection 2, which provides that the proper officer can conduct the inspection or search at the place of business of registered person. In addition to this, we also do have section 71, which also provides the power to the government, power to the proper officer to conduct the inspection at the place of business of the registered person. So these 3 provisions do empower the government to conduct the inspection or search at the place of business of the registered person. So the question arises apparently that, whether it is a new thing which is going to be provided by way of this instruction or something, in addition to that. So let me tell you that instruction is not a law as such. Instruction is not a law. Instruction is just backed by section 168 of Central GST Act, which provides that the government, in fact, the CBIC can, issue the direction, order, or instruction, and which are required to be implemented by the officers. Right. So the instructions are being given and which is required to be implemented by the officer. Of course, that instruction cannot travel beyond the law. Instruction cannot travel beyond the law. So whether it is a very new point which is being discussed, so I would say the law is not changed. Law is same. Now we have to see that what is being mentioned in this particular instruction. This is the only point which we have to see. Otherwise, the law is as same. कुछ नया नहीं है. ना तो एक्ट में कोई बदलाव है, ना रूल्स में कोई बदलाव. So now let us go further. If we see, or if we closely look on the instruction, we'll see that there are a number of terminologies given over there, like fake registration, fake billers, fake dealers, fraudulent ITC, fictitious taxpayers. So all these are being, stated by way of given a particular wording. If you read the instruction, you will come to know they do use the word fake registration, they do use the word fake billers, fake traders, fake ITC, fraudulent ITC, fictitious taxpayers. We also come to know that, all these things are pertaining to 2 points. Whether the persons are the fraudulent persons or the ITC is the fraudulent ITC.
दिस इज द ओनली पॉइंट जिसकी धुरी पे ये पूरा का पूरा इंस्ट्रक्शन चल रहा है। बस आपको यही देखना है कि एग्जैक्टली ये किस सब्जेक्ट मैटर पे बात कर रहा है। सब्जेक्ट मैटर दो ही है, फेक पर्सन्स और फेक आईटीसी। वी ऑल अंडरस्टैंड, हमारे पास में ऑलरेडी सर्कुलर 171 है। वी ऑलरेडी डू हैव नंबर ऑफ प्रोविजंस विद अस कि एग्जैक्टली अगर फेक आईटीसी होता है नो, अंडरलाइंग सप्लाई इज नॉट बैक्ड, ओके, अगर इनवॉइस है और इट इज नॉट सपोर्टेड बाय द पर्टिकुलर इनवॉइस, इनवॉइस है बट दैट इज नॉट बैक्ड बाय द ट्रांजेक्शन और अ सप्लाई एज सच, in that case we regard it as a fake transaction and which is actually providing the seamless credit to the recipient. So a issue arises कि exactly इन matters को लेकर पहले ही government काफी proactive है, then why this particular instruction has been issued. We all know कि जो financial year 22-23 में fake ITC का एक जो data आ रहा है that is being said कि वो double है उसके previous financial year से। तो मोर देन 1 लाख करोड़ का फेक अमाउंट अभी क्वांटिफाई हुआ है, ओके, बाय व्हाटसएवर रीजन इट इज। तो जब 1 लाख करोड़ से ज्यादा का अमाउंट फेक में आ रहा है तो डेफिनेटली गवर्नमेंट इज वेरी मच कंसर्न अबाउट ऑल दिस थिंग्स एंड दिस इज द टाइम जहां गवर्नमेंट खुद ट्रांसपेरेंसी और बहुत ही अच्छे गवर्नेंस पे जा रही है। तो जब उस आइडियोलॉजी पे वो बात कर रहे हैं तो इन्होंने इसको ऑब्जर्व किया है फाइनेंशियल ईयर के एंड होने के बाद में ही, और इसी चीज के तहत हमारे पास में एक इंस्ट्रक्शन आया है which is actually regulating both of the aspects कि अगर persons जो रजिस्ट्रेशन लेकर बैठे हैं वो फेक है, वो फ्रॉडुलेंट है, या जो ट्रांजेक्शन हो रहा है उसका जो डेरिवेटिव है दैट इज द टैक्स अमाउंट और आउटपुट टैक्स और द आईटीसी, अगर वो गड़बड़ है तो ऐसे केस में उसको किस तरीके से मैशर के तौर पर लिया जाए, मिशन के तौर पर। नो, दिस इंस्ट्रक्शन इज ऑल्सो यूजिंग द वर्ड मिशन, तो मिशन के तौर पे इसको लेने की बात यहाँ इस इंस्ट्रक्शन में की जा रही है। तो जब जैसे ये एक हमारे पास में इंस्ट्रक्शन आया है तो प्रोफेशनल गलियारों में कहो चाहे ट्रेड के गलियारों में कहो, हर जगह इस तरीके की बात हो रही है कि इस पे क्या करना चाहिए, और इसी ऑब्जेक्टिव के साथ में इस पर्टिकुलर सेशन को प्लान किया गया है। एंड आई वुड ट्राई माय बेस्ट टू कवर ऑल ऑफ द एस्पेक्ट्स व्हिच आई एम नोटिसिंग, which people are noticing by way of social media or our clients are following for the precautionary measures as such. Now if we look on this instruction, तो ये बोल रहा है कि हम फिजिकल वेरिफिकेशन करेंगे। एक्चुअली वर्ड फिजिकल मिसिंग है पूरे, अगर इस इंस्ट्रक्शन में आप देखेंगे तो दैट टॉक्स अबाउट वेरिफिकेशन ओनली, बट वो ऑब्वियस है कि इस इंस्ट्रक्शन की बैकिंग कहाँ है। बैकिंग जहां भी है, चाहे वो रूल 25 में हो, चाहे 67 में हो, चाहे वो 71 में हो, वो सारी की सारी बैकिंग जो है फिजिकल वेरिफिकेशन को ही इन्फर करती है। तो भले इंस्ट्रक्शन ने वर्ड फिजिकल यूज नहीं किया, बट ऑफ कोर्स दैट वेरिफिकेशन इज नॉट द वेरिफिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स एट द प्लेस ऑफ द ऑफिस ऑफ द डिपार्टमेंट ऑन, ऐसा नहीं है। वो एक्चुअली फिजिकल वेरिफिकेशन कंडक्ट होगा, और फिजिकल वेरिफिकेशन जो हम बताएंगे आपको सेक्शन 71 में या 67 में किस तरीके से होता है, या रूल 25 में किस तरीके से होता है। तो उस फिजिकल वेरिफिकेशन को एज पर द प्रोविजन, एज पर द रेलेवेंट प्रोविजन जिस भी तरीके से कंडक्ट किया जाएगा, और अगर वहां से कुछ एबनॉर्मल नजर आता है तो ऐसे केस में गवर्नमेंट हैज नंबर ऑफ प्रोविजंस विद देम to be taken as an action, right? So section 29 we do have for the cancellation or suspension of the registration. We have rule 86A to block the input tax credit, okay? And जहां तक रेसिपिएंट का सवाल है, अगर यहाँ नोटिस होता है कि वो पर्टिकुलर पर्सन जो सप्लाई का इनवॉइस इश्यू कर रहा है बट विच इज नॉट बैक्ड बाय द एक्चुअल सप्लाई, तो ऐसे केस में उसका जो रेसिपिएंट है, उसका रेसिपिएंट भी तो क्रेडिट ले रहा है, तो उसके लिए एक्शन क्या है? तो दैट इज द डिमांड एंड रिकवरी प्रोविजंस which is mentioned under section 73 or 74. If you look at 73, 74, which is said that it is wrong for wrongly availment of ITC or wrongly utilization of ITC. Action to be taken against the masterminds and beneficiaries. Yes, ये भी अपने आप में एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रोविजन है कि exactly those people who are the masterminds and beneficiaries, उनके लिए भी हमारे पास में सेक्शन 122, 132 में प्रोविजंस लेट डाउन है। तो वो एज पर द एप्लीकेबल सिनेरियो दीज एक्शंस में बी टेकन। रिकवरी वी हैव सेक्शन 79 विद अस एंड ऑफ कोर्स अ प्रोविजनल अटैचमेंट सेक्शन 83। तो इतने तरीके के रेमेडियल मेजर्स गवर्नमेंट अपने इंटरेस्ट में
इनिशिएट कर सकती है जब इस ड्राइव से कुछ एबनॉर्मल आएगा। तो एज पर द एप्लीकेबिलिटी ऑफ दीज प्रोविजंस वो सारी चीजें आपको देखने को मिलेगी। ये सब चीजें मैंने अपने आप से नहीं लिखी है, सारी चीजें आप इंस्ट्रक्शन को अगर आप परव्यू में लेंगे तो आपको ये सारी चीजें वहां पर देखने को मिलेंगी। और ऑब्वियसली वो इंस्ट्रक्शन, जैसा मैं आपको बोल रहा हूँ, इंस्ट्रक्शन कैन नॉट ट्रेवल बियॉन्ड द लॉ, तो नेचुरली ये लॉ के सारे प्रोविजन है, ये इंस्ट्रक्शन नहीं भी होता तो भी ये ऑलरेडी वो इनिशिएटिव ले सकते हैं। तो एग्जैक्टली इस स्पेशल ड्राइव में ऐसा स्पेशल क्या है? बस स्पेशल ये है कि इन्होंने इसको एक ड्राइव नाम दे दिया और जो नेशन वाइड कंडक्ट की जा सकती है। और जब नेशन वाइड कंडक्ट करने की बात की जा रही है तो वो सेंट्रल जीएसटी हो चाहे स्टेट जीएसटी हो, कोई भी डिपार्टमेंट इसको और डिपार्टमेंट का कोई भी ऑफिसर अपने जुरिस्डिक्शनल क्राइटेरिया में जो रजिस्टर्ड पर्सन है उन्हीं को कवर करने के लिए है। मतलब वन हैज टू बी द जुरिस्डिक्शनल ऑफिसर फॉर दिस। आप ये भी जानते हैं कि जुरिस्डिक्शनल ऑफिसर के अलावा और कौन विजिट कर सकता है, तो यहाँ जो इंटेलिजेंस के डीजीजीएसटी इंटेलिजेंस के ऑफिसर आपको विजिट कर सकते हैं, भले ही वो जुरिस्डिक्शनल ऑफिसर नहीं है। या एंटीविजन के लोग आपको विजिट कर सकते हैं, भले ही वो जुरिस्डिक्शनल ऑफिसर नहीं है। तो इन्हीं 3 तरीके के ऑफिसर्स द्वारा आपके पर्टिकुलर प्लेस ऑफ बिजनेस पर ये विजिट कंडक्ट की जा सकती है, फिजिकल वेरिफिकेशन कंडक्ट किया जा सकता है। तो मुद्दा ये आता है कि एग्जैक्टली वो ऑफिसर कौन होगा जो इसको विजिट करेगा, और क्या वो पर्टिकुलर ड्राइव से जो एक्शन लिया जा रहा है फॉर द पर्पस ऑफ वेरिफिकेशन, नॉट इनफैक्ट इनिशिएट, जो वेरिफिकेशन इनिशिएट किया जा रहा है वो वेरिफिकेशन बेसिकली कौन सा ऑफिसर करेगा। तो जैसे मैं आपको बता रहा हूँ कि भले ही आपका जीएसटी, अगर आप जब जीएसटी पोर्टल पर जाते हैं और सेस टैक्स पे करते हैं तो आपको सेंट्रल और स्टेट जीएसटी दोनों ऑफिसर्स दिखते हैं, बट आपका जुरिस्डिक्शनल ऑफिसर ही आपको यहाँ विजिट करेगा। तो ऐसा नहीं है कि आपका जुरिस्डिक्शन स्टेट में और सेंट्रल का ऑफिसर वो कर देगा, वैसा नहीं है। कमिंग टू द नेक्स्ट एस्पेक्ट कि वो वेरिफिकेशन जब करेंगे तो क्या वो प्री इन्फॉर्म्ड वेरिफिकेशन होगा या वो एक अपने आप में सरप्राइज होगा। तो जैसा आप देख सकते हैं रूल 25 के अलावा जो आपके पास में जो सेक्शन 67 और 71 है, तो इन दोनों ही सेक्शन 67 और 71 में प्री इन्फॉर्म्ड नहीं है, प्री इन्फॉर्म्ड नहीं है। आप रूल 25 को पढ़ेंगे तो वो बोलता है कि वो ये बोल रहा है कि एट द प्रेजेंस ऑफ द रजिस्टर्ड पर्सन वो फिजिकल वेरिफिकेशन कंडक्ट किया जाएगा। रूल 25 जब रजिस्ट्रेशन ग्रांट किया जाता है उससे पहले वो आता है, तो बोलते हैं कि जिस पर्सन ने एप्लीकेंट के ऊपर, ओके, एप्लीकेंट की प्रेजेंस में वो पर्टिकुलर वेरिफिकेशन किया जाएगा। और अगर रजिस्ट्रेशन ग्रांट होने के बाद में वो वेरिफिकेशन हो रहा है तो रजिस्टर्ड पर्सन की प्रेजेंस में किया जाएगा या उसके किसी ऑथोराइज पर्सन। लेकिन सेक्शन 67 और सेक्शन 71 को आप रीड करेंगे तो वहां ऐसा नहीं है कि वो प्री इन्फॉर्म्ड होगी, ऑब्वियसली वो सरप्राइज तरीके से ही होगी। तो एग्जैक्टली क्या हो रहा है, जीएसटी नेटवर्क जो है वो अपने डेटा एनालिटिक्स के बेसिस पे डेटा जो है वो नोडल ऑफिसर को देगा और नोडल ऑफिसर अपने जुरिस्डिक्शनल ऑफिसर को डेटा पास ऑन करेंगे। प्रैक्टिकली हो ये रहा है कि मतलब जिस तरीके के इंस्ट्रक्शन उनको इंटरनली दिए गए, जो एसओपीज उनको दी गई है, जो हमारे पास में नहीं है, ओके, तो हर एक स्टेट का अपना एसओपी है, तो ऑब्वियसली वो सीबीआईसी को इश्यू नहीं करना है, अपने अपने स्टेट को अपनी अपनी चीजें रेगुलेट करनी है जहां तक स्टेट ऑफिसर्स का सवाल है। तो प्रैक्टिकली कहा जा रहा है कि हम आपको डेटा देंगे, उसके 2 या 3 दिन में, मतलब बहुत इमीडिएट बेसिस पे आपको वो अपना इनिशिएशन लेना है सो फार एज द वेरिफिकेशन इज कंसर्न। जब ये वेरिफिकेशन होगा तो एग्जैक्टली किस तरीके के डॉक्यूमेंट्स मांग सकते हैं आपसे, क्या वो स्टॉक को वेरीफाई करवा सकते हैं, क्या आपके कंप्यूटर को वो चेक कर सकते हैं, क्या वो किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे वो आ सकते हैं, मतलब अगर आपके बिजनेस आवर्स के बियॉन्ड भी क्या वो वेरिफिकेशन कंडक्ट किया जा सकता है। तो देयर आर नंबर ऑफ क्वेश्चंस व्हिच आर रोमिंग अराउंड। ओके, जीएसटी रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट पे जो इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड है वो अपडेटेड नहीं है तो क्या होगा, अगर बैंक अकाउंट अपडेटेड है तो क्या नहीं है तो क्या होगा, जियो लोकेशन अपडेटेड नहीं है तो क्या होगा। मतलब देयर आर नंबर ऑफ पॉइंट्स जिसको आप चाहे जितना लिस्ट आउट कर सकते हैं, राइट। अगर प्लेस ऑफ बिजनेस पे विजिट की जा रही है और वहां रजिस्टर्ड पर्सन अवेलेबल नहीं है तो क्या होगा, या उनका ऑथराइज पर्सन अवेलेबल नहीं है तो क्या होगा। सो
all these questions are needed to be answered because section 67 और 71 को देख रहे हो तो वो actually pre-intimated visit नहीं है, pre-intimated physical verification नहीं, तो it is very likely that registered person may not be available या उसका authorized person may not be available. Okay, तो ये सारे मुद्दों को लेकर आज की तारीख में ट्रेड और प्रोफेशनल फ्रेटर्निटी में क्वेश्चंस बने हुए हैं जिसको हम लोगों को 1-to-1 आंसर करना. सो द वेरी फर्स्ट इशू इज, मैंने यहाँ कई सारे इश्यूज हाईलाइट किए हैं और इन सारे इश्यूज को डिस्कस करने के बाद में इफ यू हैव एनी काइंड ऑफ क्वेश्चंस आई विल बी हैप्पी टू आंसर इट. सो द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन इज, डू वी हैव एनी चेंज इन द लॉ? ऑफ कोर्स देयर इज नो चेंज. गवर्नमेंट मतलब लॉ मेकर्स हैव प्रोवाइडेड द पावर टू इशू द इंस्ट्रक्शन, तो CBIC हैज द पावर टू इशू द इंस्ट्रक्शन. इसके अलावा और कुछ नहीं. और ये पहला इंस्ट्रक्शन नहीं है, आप देखेंगे 2022 में आपको 4 इंस्ट्रक्शन मिल जाएंगे, उससे पहले भी इंस्ट्रक्शन अलग अलग कॉन्टेक्स्ट में आपको इंस्ट्रक्शंस मिले. नाउ द वेरिफिकेशन इज, जैसा मैं आपको बोल रहा था कि वो वेरिफिकेशन क्या है, फिजिकल वेरिफिकेशन है या समथिंग एल्स. ऑफ कोर्स दैट इज फिजिकल वेरिफिकेशन ओनली. वेरिफिकेशन किसके लिए है, ये एक क्वेश्चन, न्यू एप्लीकेंट और एग्जिस्टिंग रजिस्टर्ड पर्सन. तो आप समझ पा रहे हैं इसको जब आप रीड करेंगे तो रजिस्टर्ड पर्सन के लिए ही बोल रहा है. तो नेचुरली ऐसे केस में सेक्शन 67 और 71 को ही पिक्चर में आना है. लेकिन जब आप रूल 25 को पढ़ रहे हैं तो बोल रहे हैं इवन आफ्टर ग्रांटिंग द रजिस्ट्रेशन द वेरिफिकेशन में बी कंडक्टेड. तो क्वेश्चन ये है कि क्या ये सिर्फ और सिर्फ उन पर्सन्स के लिए जो रजिस्टर्ड हैं, और रजिस्टर्ड है तो रजिस्टर्ड किसको कहा जाता है? आप देखेंगे UIN होल्डर को रजिस्टर्ड नहीं कहा जाता है. तो रजिस्टर्ड पर्सन कौन है? जो सेक्शन 2 क्लॉज 94 में डिफाइंड है और बोला है द पर्सन हु इज रजिस्टर्ड अंडर द GST लॉ. ऑफ कोर्स UIN वाले लोग रजिस्टर्ड पर्सन की कैटेगरी में नहीं है. तो ऐसे पर्सन्स का क्या होगा? ये भी एक क्वेश्चन है कि मान लीजिए ड्राइव कंडक्ट होनी है जो 16 तारीख से लेकर 15 जुलाई तक चलने वाली है, राइट? तो 2 महीने के लिए ड्राइव की जा रही है, 16 मई से लेकर और 15 जुलाई तक. तो अभी हमारे केस में भी कई सारे ऐसे क्लाइंट्स हैं जिन्होंने बोला है सर नाउ वी आर नॉट इंटरेस्टेड टू कंटिन्यू आवर बिजनेस. तो कई लोग जो कई केसेस में ऐसा है कि जिनका निल रिटर्न फाइल हो रहा था, वो लोग अभी जागे हैं कि अरे इस वेरिफिकेशन के चक्कर में कौन पड़ेगा, राइट? तो दे आर ऑल्सो कमिंग फॉरवर्ड कि अरे अब हमारे रजिस्ट्रेशन को आप कैंसिल कर दो. तो मान लीजिए कल 16 तारीख से पहले, एक दिन पहले से मान लो 15 तारीख को रजिस्ट्रेशन आपने कैंसिलेशन के लिए अप्लाई कर दिया, तो आप कौन सा स्टेटस रखते हैं? क्या आप रजिस्टर्ड पर्सन हैं या आप अनरजिस्टर्ड पर्सन हैं? जब आप रूल को देखेंगे तो विल कम टू नो, वहां रूल में लिख रखा है कि आप REG 16 में आप एप्लीकेशन फाइल करते हैं फॉर द पर्पज ऑफ कैंसिलेशन. तो आप खुद भी रजिस्ट्रेशन कैंसिलेशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं. और REG 19 में ऑर्डर आता है और ऑर्डर आएगा विदिन 15 डेज. तो मान लीजिए किसी ने 15 तारीख को रजिस्ट्रेशन कैंसिलेशन के लिए, क्योंकि ये ड्राइव चली है तो बहुत हाहाकार मचा हुआ, तो लोग अपने अपने तरीके से चीजों को सेटल कर रहे हैं. तो 15 तारीख को मान लो किसी ने रजिस्ट्रेशन सरेंडर करने के लिए अप्लाई किया है, तो उसका स्टेटस क्या रहेगा? क्या वो रजिस्टर्ड पर्सन माना जाएगा? रजिस्टर्ड पर्सन, मेरे हिसाब से वो रजिस्टर्ड पर्सन माना जाएगा बिकॉज उसका रजिस्ट्रेशन कैंसिल नहीं हुआ है. ओके, अब रजिस्ट्रेशन कैंसिलेशन होना है REG 19 में. तो जब तक कैंसिलेशन का ऑर्डर नहीं है, आपका स्टेटस रजिस्टर्ड पर्सन ही रहेगा, इवन दो यू हैव अप्लाइड फॉर द कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन. तो ऑफ कोर्स वो स्टेटस क्या है? रजिस्टर्ड पर्सन से अनरजिस्टर्ड पर्सन के बीच की एक स्टेटस है, दैट इज सस्पेंशन. So you are suspended, but of course you carry the registration for that also. So in my humble view, ऐसे केस में उन suspended persons के लिए भी physical verification conduct किया जा सकता है. So verification exactly क्या है? ये inspection है या search है या कुछ और है? तो एक inspection word use किया है उन्होंने section 67 subsection 1 में, एक inspection word use किया उन्होंने section 71 में. प्लीज टेक केयर, रूल 25 में उन्होंने इंस्पेक्शन वर्ड यूज नहीं किया, उन्होंने फिजिकल वेरिफिकेशन तक ही उसको सीमित रखा है. फिजिकल वेरिफिकेशन फॉर इंस्पेक्शन, ये जो चीज है कि फिजिकल वेरिफिकेशन किया जा रहा है, बट फॉर व्हाट? फॉर इंस्पेक्शन, सर्च. तो मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ, इंस्पेक्शन सेक्शन 67(1) में है और साथ के साथ में ही सेक्शन 71 में भी है. तो एक्चुअली इंस्पेक्शन हो सकता है, मतलब ये जो विजिट हो रही है वो दैट इज द इंस्पेक्शन अंडर सेक्शन 71 इन जनरल,
बट if the officer has the reason to believe, तो वो इसको कन्वर्ट कर सकता है सेक्शन 67 में भी. ठीक है, ये जो डेटा आ रहा है वो क्या कर रहा है, इट इज प्रोवाइडिंग बेसिकली अ रीजन टू सस्पेक्ट इन जनरल, राइट. बट अभी मैं पढ़ भी रहा था, कई सारे सोशल मीडिया में आप लोग भी देख रहे होंगे कि पर्टिकुलर स्टेट गवर्नमेंट ने बोला है डरने की जरूरत नहीं है, कोई सर्च नहीं होगी, कोई इंस्पेक्शन नहीं होगा, इस तरीके का कोई सर्वे नहीं किया जाएगा, लेकिन फिर भी सर्वे किया जा रहा है. तो इट इज एन इंडिविजुअल डिसीजन बेसिकली, और रीजन टू सस्पेक्ट और रीजन टू बिलीव पर ही डिपेंड करेगा कि उसको 67 के रास्ते से जाना है या उसको 71 से जाना है. ऑफ कोर्स जब वो सेक्शन 67 के रास्ते से जाएगा तो ही मस्ट हैव द ऑथराइजेशन लेटर INS 01. ओके, ट्रेड में उसको सर्च वारंट बोलते हैं, बट वो सर्च वारंट नाम का कोई वर्ड नहीं है. बट यस, उसके पास में INS, दैट इज व्हिच एक्चुअली इन्फर्स इंस्पेक्शन, राइट. लेकिन INS 01 सर्च और इंस्पेक्शन दोनों के लिए. तो अगर वो 67 में प्रोसीडिंग करना चाहते हैं तो उनके पास में INS 01 होना चाहिए. ध्यान रखिए, सेक्शन 71 को जब आप रीड करते हैं, ऑफ कोर्स उसको वो फिजिकल वेरिफिकेशन करना है तो वो भी बेस्ड ऑन ऑथराइजेशन ऑफ द ऑफिसर नॉट बिलो द रैंक ऑफ जॉइंट कमिश्नर ही किया जा सकता है. तो ऑथराइजेशन तो उसके पास में होना चाहिए. बट अनफॉर्चुनेट पार्ट ये है कि सेक्शन 71 पे अपने आप में ना तो कोई रूल है. ओके, सेक्शन 71 इज नॉट बैक्ड बाय एनी रूल. तो उसका अपने आप में कोई फॉर्म प्रेस्क्राइब नहीं है. तो उसका कोई फॉर्म नहीं होगा, एक जनरल लेटर होगा, यस आई डू हैव द अथॉरिटी टू कंडक्ट दिस पर्टिकुलर फिजिकल वेरिफिकेशन. तो जब ऑफिसर आएंगे तो आप चाहें तो उनसे बोल सकते हैं हु आर यू, बिकॉज यू नो एनी अननोन पर्सन शुड नॉट बी अलाउड टू एंटर इनटू योर बिजनेस प्रेमाइस, राइट. तो आपको INS 01 आपको उनसे पूछना है कि आप एग्जैक्टली आपके पास में अथॉरिटी है कि नहीं. तो यू कैन ऑलवेज आस्क दिस. if they do conduct the this particular proceeding under section 67, they must be having INS 01. otherwise उनके पास में एक सिंपल लेटर होगा जो 71 की बैकिंग से आएगा. जब वो फिजिकल वेरिफिकेशन होगा तो वो क्या क्या तरीके के डॉक्यूमेंट्स आपसे मांग सकते हैं. ओके, आप जब सेक्शन 71 को पढ़ेंगे, why it is not moving? It is not moving. So I am on the next issue 3rd. Sorry. Yes. सो द क्वेश्चन इज कि क्या वो आपका मोबाइल चेक कर सकते हैं. ऐसे कई तरीके के क्वेश्चन आ रहे हैं जिसको हमको सेक्शन 71 और सेक्शन 67 से देखना पड़ेगा. क्या वो फिजिकल वेरिफिकेशन ऑफ स्टॉक कंडक्ट कर सकते हैं, ये भी अपने आप में एक क्वेश्चन है. एंड यू नो अनफॉर्चुनेटली ये स्लाइड मूव नहीं हो रहा है. इफ यू कुड प्लीज आस्क देम. यस. So friends, if you read section 71, section 71 आपको section 71 subsection 1 बताता है कि officer should have the authorization from the proper officer not below the rank of joint commissioner, and he will be having the power to access any place of business, मतलब principal हो चाहे वो additional place हो, of a registered person. This is not moving basically. तो जब वो फिजिकल वेरिफिकेशन कर रहा होगा, आई एम सॉरी, तो 71, no, meanwhile it is shared, you know, I keep on continuing my session. It is not going beyond, it is not displayed. If you read section 71 subsection 2, तो आपको वहां पता चलेगा officer can always conduct the inspection of the documents including books of accounts. तो बोल रहे हैं कि आप बुक्स ऑफ अकाउंट्स को चेक कर सकते हैं, मतलब रिकॉर्ड्स, आप ट्रायल बैलेंस देख सकते हैं, आप स्टेटमेंट ऑफ
मतलब फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, कॉस्ट ऑडिट रिपोर्ट, इनकम टैक्स ऑडिट रिपोर्ट, ये सारी इंफॉर्मेशन वो आपसे डिमांड कर सकते हैं, यू विल हैव टू प्रोवाइड इट। मान लीजिए क्वेश्चन ये आता है कि जिस पॉइंट ऑफ टाइम पे उन्होंने ये इंस्पेक्शन किया उस समय आपके पास में सारे रिकॉर्ड्स अवेलेबल नहीं है, तो क्या कोई अपराध हो जाएगा? ऐसा नहीं है। लॉ सेज दैट यू कैन प्रोवाइड विद इन 15 डेज। ओके, तो आपको 15 डेज में उसको लेटर ऑन आप उसको प्रोवाइड कर सकते हैं, उस पर जाके कोई रिजर्वेशन लॉ का नहीं है। But please take care, section 71 subsection 2 does not empower the proper officer to conduct the physical verification of the stock assets. आपसे रिकॉर्ड ले सकता है, लेकिन स्टॉक का फिजिकल वेरिफिकेशन का पावर 71 में नहीं है। वो पावर उनको सेक्शन 67 में है, लेकिन वो पावर यहाँ नहीं है। प्लीज टेक केयर। ये ड्राइव का पीरियड, एज आई ऑलरेडी डिस्कस, ये ड्राइव स्पेशल ड्राइव बोला गया है। इनफैक्ट 16 मई से पहले भी ये कंडक्ट की जा सकती थी वो इंस्पेक्शन, और 15 जुलाई के बाद में भी ये कंडक्ट किया जा सकता है। नाउ अगर इंस्पेक्शन को रीड करेंगे आप, इस इंस्ट्रक्शन को रीड करेंगे, आई एम सॉरी, तो बहुत सारे वर्डिंग्स और बहुत सारी चीजें आपको यहाँ से सामने आएंगी। तो एक और क्वेश्चन फ्रेटर्निटी में ये चल रहा है कि वेदर दिस इंस्ट्रक्शन, मतलब लोग इसका इंटरप्रिटेशन निकाल रहे हैं। तो मेरा ये मानना है कि इंस्ट्रक्शन इज जस्ट एन इंस्ट्रक्शन, दिस इज नॉट द लॉ। तो यहाँ रूल ऑफ इंटरप्रिटेशन एटसेट्रा बैकड्रॉप पे आप कुछ आप अपना इंटरप्रिटेशन निकालने का इसमें कोई पॉइंट नहीं है। दिस इज एन इंस्ट्रक्शन ऑफिसर्स, राइट? So instruction is not the law, and so rule of interpretation should not, come into the play. क्योंकि अगर आप इंस्ट्रक्शन को भी रीड करेंगे तो there are various types of phrases, wordings. Investigation, एक तो merely investigation word यूज किया है, एक investigation, inspection, और एक ये किया है verification ऑब्लिक इन्वेस्टिगेशन। तो ये दो जगह उन्होंने यूज किया है। तो मतलब उनका इंटेंट, जब इस इंस्ट्रक्शन को आप रीड करोगे तो सेक्शन 71 इन्वेस्टिगेशन नहीं की जा सकती। तो मुझे ऐसा फील होता है कि उन्होंने ऑलरेडी वो इन्फर कर दिया है 67 का, और कई सारी स्टेट गवर्नमेंट्स बोल रही कोई सर्वे नहीं होगा, और अगर आपके यहाँ सर्वे होता है एटसेट्रा होता है तो आप हमको वो कंप्लेन रजिस्टर करा सकते हैं, जबकि लॉ में उसके पास में पावर है। अगर उसके पास में रीजन टू बिलीव होगा तो वो 71 से क्यों जाएगा? उसके पास में वो नेचुरल पावर है, तो वो दे ही सकता, वो उसके हिसाब से उसको वो कंडक्ट कर ही सकता है। डेट एंड टाइम तो ऑब्वियसली ऑफिसर अपने ऑफिस टाइम पे उसको कंडक्ट कर सकता है। आप नहीं मिलेंगे देन ही मे कॉल यू, वो सब चीजें यहाँ नहीं लिखी हुई है, बट वो प्रैक्टिकल है कि वो आपको कॉल करेंगे, आप अवेलेबल नहीं होंगे तो नेक्स्ट डे वो आपको बात करेंगे। ओके, इन केस इफ यू आर नॉट अवेलेबल, आपका शटर डाउन है, तो फिर क्या होगा? तो ऐसे केस में वो सेक्शन 29 इन्वोक कर सकता है। ओके, सेक्शन 29 इन्वोक कर सकता है। ऑब्वियसली वो इन्वोक करेगा तो मतलब ये नहीं कि बिना शोकोज नोटिस दिए वो प्रोसीडिंग हो जाएगा। ही विल हैव टू इशू द शोकोज नोटिस टू यू। तो वो शोकोज नोटिस आपको इशू करेंगे, एंड उस शोकोज नोटिस के बेसिस पे आप अपना सबमिशन दीजिए। तो हो सकता है उसको सस्पेक्शन पे के बेसिस पे नोटिस इशू करना पड़े, आप अपने नेचुरल जस्टिस प्रिंसिपल को फॉलो करते हुए और जो लॉ के प्रोसीजर्स हैं उसको फॉलो करते हुए इनको आगे बढ़ा सकते हैं। What happened? Right happened. Meanwhile, if you have any questions, please, you may please ask me. If you have any sort of questions. इन्वेस्टिगेशन के टाइम पे डॉक्यूमेंट्स वो अपने कस्टडी में नहीं तो इन रिकॉर्ड रख सकते हैं तो नहीं, अगर वो 71 में तो नहीं रख सकते ना, वेरीफाई करने के लिए 67 में तो वो रख सकते हैं, राइट? एक्चुअली इसका इंटेंट क्या है, प्रॉब्लम क्या हो रहा है? इस इंस्ट्रक्शन को भी आप रीड करेंगे, यू विल कम टू नो कि लोगों ने किसी और पर्सन के नाम पे रजिस्ट्रेशन ले लिया। ओके, एक्स पर्सन के नाम पे वाई पर्सन ने रजिस्ट्रेशन ले लिया। अभी आप बोलेंगे सर आधार ऑथेंटिकेशन के जमाने में कैसे पॉसिबल है? तो नंबर भी चेंज करा दिया है ना, तो नंबर भी उसका ही थंब इम्प्रेशन लगा के उसी का ही नाम का नंबर लेकर और उसको कुछ पैसा देकर और वो रजिस्ट्रेशन में उसका फोन नंबर आधार ऑथेंटिकेटेड फोन नंबर हो गया, उसी नंबर पे उन्होंने रजिस्ट्रेशन भी ले लिया। तो यही सब चीजों के चलते तो ये हो रहा है।
ओके अदरवाइज तो आप देखेंगे लॉ में उन्होंने GSTR 1 और GSTR 3B और जो दूसरे कंप्लायंसेस है उसमें इन जनरल एक प्रोविजन डाल ही दिया है ना कि प्रीवियस कंप्लायंस नहीं हुआ तो अभी वाला पिछला GSTR 1 फाइल नहीं हुआ तो इस बार GSTR 1 और 3B दोनों ही फाइल नहीं कर सकते। पिछला 3B फाइल नहीं हुआ तो 1 3B अभी वापस फाइल नहीं कर सकते। पिछला 9 फाइल नहीं हुआ तो 9 फाइल नहीं कर सकते। पिछला GSTR 4 फाइल नहीं है तो वो इस बार का GSTR 4 फाइल। So these amendments have already been introduced. आप रूल 138E को पढ़ेंगे तो वहां बोलते हैं कि अगर आपने कॉन्जिक्यूटिव 2 मंथ्स के रिटर्न फाइल नहीं किए तो आप पार्ट ए ऑफ EWB 01 भी फर्निश नहीं कर सकते, मतलब आप ई-वे बिल जनरेट ही नहीं कर पाएंगे। तो ऑलरेडी काफी सारे मेजर्स वो ले चुके हैं। GSTR 2A से अब वो 2B पे शिफ्ट हो चुके हैं। तो दे हैव ऑलरेडी टेकन नंबर ऑफ इनिशिएटिव्स सो एज टू कर्ब दिस प्रैक्टिस। लेकिन साथ के साथ में उन्होंने वो देख रहे हैं ना कि कुछ ना कुछ तो फिर भी हो ही रहा है। एंड दैट इज व्हाई दिस इंस्ट्रक्शन आल्सो आस्क द ऑफिसर्स टू गिव द इनपुट ऑन द नोवल प्रैक्टिसेस, कि वो बोल रहे हैं कि अगर हमको भी कुछ पता ना हो तो आप हमको भी बताइए एग्जैक्टली और क्या प्रैक्टिसेस चल रही है। This I have already answered. What are the basic risky criteria? Okay, risky criteria क्या है? तो risky criteria में आप ये नोटिस कर सकते हैं कि multiple registrations have been taken on a single place of business. This is also one of the possibility, right? आपके यहाँ पता चल रहा है कि ITC यूटिलाइज हो रहा है, कैश में पेमेंट नहीं हो रहा। रिस्की क्राइटेरिया कुछ भी हो सकते हैं, मतलब वो ऑलरेडी गवर्नमेंट उनको इनपुट्स दे रही है और टाइम टू टाइम ऑलरेडी उन्होंने कई सारे इंस्ट्रक्शंस और सर्कुलर्स और प्रेस रिलीजेस के माध्यम से बताया कि ये दीज आर द रिस्की क्राइटेरिया। तो ये कोई नया पॉइंट नहीं है। अगेन क्राइटेरियाज हैव ऑलरेडी बीन मेंशन्ड टाइम टू टाइम बाय द गवर्नमेंट टू द ऑफिसर्स। तो एंड आज की तारीख में सारी स्टेट गवर्नमेंट्स के पास में अपना इंटेलिजेंस है, अपने डेटा एनालिसिस है, तो वो ऑलरेडी उन सारी चीजों को यूज कर रहे हैं। बट यहाँ जो डेटा आ रहा है वो GST नेटवर्क से डेटा आ रहा है ना। साथ के साथ में इन्होंने ये भी बोला है कि ऐसा नहीं है कि हम डेटा दे रहे हैं भाई, आपके पास में भी अपना कोई डेटा है, आपके पास में भी कोई खुफिया खबर है, वो उसमें बोला है कि आपके पर्सनल लेवल पे भी अगर आपको कोई इनपुट है तो यू मे डू दिस। So it is not just the GST data which is required to be worked upon. They may also have the data with them और आपको वो सारी चीजें यहाँ पे करनी। Now what you have to take care additionally when they do inspect it, they need to they may check the compliances of rule 18. अगर आप सेंट्रल GST रूल्स 18 को पढ़ेंगे तो वहां आपको पता चलेगा कि GST certificate that should be pasted inside the place of business at the prominent place, और जो GST नंबर है वो आपके साइन बोर्ड पे at the exit side आपको वो डिस्प्ले करना होता है। तो ये सब चीजें आपको कंप्लाई करके रखना है। इन केस इफ दीज आर नॉट कंप्लाइड विद, they may invoke the general penalty because there is no special penalty, specific provision of penalty assessed. So you may please guide your clients accordingly कि किस तरीके से इन सारी चीजों को इंश्योर किया जाना है। यस, अब इसमें क्वेश्चन ये आता है कि अगर मल्टीपल बिजनेसेस हैव बीन रजिस्टर्ड ऑन एट अ सिंगल एड्रेस तो क्या होगा। तो पहला तो ये कि ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर लाइक दिस, तो उसमें ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है। बट ऑन अ सिंगल फ्लोर, जैसे अभी ये हमारा ऑडिटोरियम है और यही अगर पता चला ये आपकी डेस्क है, डेस्क नंबर 1, डेस्क नंबर 2, डेस्क नंबर 3, नाउअडेज इंक्यूबेटर का जमाना है तो ये सब चीजें पॉसिबल हो रही, तो आपको क्या करना चाहिए। So that should be demarcated precisely. That should be demarcated. वो आपके रेंट एग्रीमेंट में डिमार्केटेड होनी चाहिए और प्रॉपर तरीके से। डिमार्केशन का मतलब फिजिकल डिमार्केशन से नहीं है, बट ऑन पेपर इट इज सपोज्ड टू बी डिमार्केटेड। प्लीज टेक केयर। You need to have the ready preparation. अगर आप कोशिश करिए कि रेडी प्रिपरेशन रहे जब वो इंस्पेक्शन के लिए आए, तो ऐसा नहीं है कि दे आर टेकिंग लॉट ऑफ टाइम। अगर आप उनको वो अपॉर्चुनिटी देंगे तो दे मे आस्क दे मे डीप डाइव इनटू मोर फर्दर इंफॉर्मेशन। सो यू शुड बी रेडी विद the documents which are necessary, which have been provided at the time of registration, और जो बेसिक चीजें आप प्रिपेयर कर सकते हैं
एट द अर्लीस्ट, वो सब चीजें आपको तैयार करके रखनी चाहिए. लाइक इफ यू आर हैविंग योर ओन प्रॉपर्टी तो आप अपना प्रॉपर्टी पेपर रखिए, आपका रेंट एग्रीमेंट, रेंटल प्रॉपर्टी तो रेंट एग्रीमेंट रखिए. ओके, जो आपके इलेक्ट्रिसिटी और वाटर बिल एटसेट्रा कुछ है तो वो रखिए. केवाईसी ऑफ योर ऑथराइज सिग्नेटरी एंड द डायरेक्टर्स, प्रमोटर्स एटसेट्रा, ये सब चीजें आपको, और बुक्स भी आपको रखनी पड़ेंगी, परचेज लेजर, सेल्स लेजर, ये सब चीज, क्योंकि 71 और 67 सब एम्पावर देते हैं करते हैं. ठीक है. रूल 25 में उनके पास में वो नहीं है, आप ध्यान रखिएगा. रूल 25 वो कर नहीं रहे, वैसे मैं आपको बता देता हूँ. इंटरनली दे हैव बीन आस्क्ड टू कंडक्ट दिस अंडर सेक्शन, ईदर अंडर सेक्शन 67 और 71. बट रूल 25 को पढ़ेंगे तो वहाँ एक बिल्कुल प्रिस्क्राइब फॉर्मेट है कि आप किससे मिले, उनका नाम, नंबर, उनके फादर, पेरेंट्स एटसेट्रा का नाम, नो, एट द टाइम ऑफ विजिट. तो वो वैसे रूल 25 हो नहीं रहा है, इसीलिए मैं उस पर ज्यादा बात नहीं कर रहा हूँ. मल्टीपल प्लेस ऑफ बिजनेस, इसकी मैं ऑलरेडी, जिस पे ऑलरेडी मैं डिस्कस कर चुका हूँ. इट इज पॉसिबल, इट इज वेल अलाउड, और इनफैक्ट ये स्पेस लॉन्च का AAR तमिलनाडु का ऑलरेडी बहुत पहले, वेल बिफोर हमारे पास में, दैट इज एब्सोल्युटली पॉसिबल. If documents are not provided, what can happen? Okay, तो ऐसा नहीं है आज उन्होंने आपसे मांगा और आज ही आपने दे दिया. वो तो लॉ बोल ही रहा है 71 में, within 15 days you should provide it. But in case if it is not provided, even after expiry of this, can government can मतलब can department can do any could do anything. तो section 122 subsection 1 का आप clause 12, 13 और 17 आप read करेंगे. ये it provides that if a taxable person who furnishes any false information with regard to registration particulars either at the time of applying for registration or subsequently. कई लोगों ने रजिस्ट्रेशन मतलब रेंटल एग्रीमेंट को भी हैम्पर करके और पेपर्स बना के रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई किया. ये भी कई तरीके की ऐसी न्यूज आती गई. तो अभी जब वो आपसे लेंगे डॉक्यूमेंट, मतलब आपके पास में ओरिजिनली वो डॉक्यूमेंट अगर नहीं होगा जो आपने सबमिट किया है, अगर वो अलग होता है तो फिर ऐसे केस में they may go for this. If you obstruct or prevent any officer in discharge while for the purpose of discharging their duty, right? तो उसको बोलते हैं ना कई बार राज्य कार्य में बाधा करते हैं, right? तो अगर आप उनको रोकते हैं, उनको पर्टिकुलर ड्यूटी कंडक्ट नहीं करने देते हैं, तो भी 122 में उसका penal consequence है. Further, it also says that a taxable person who fails to furnish the information or documents called for by an officer in accordance with the provision. So if you have failed to furnish, then also 122 subsection 1 may be invoked. और जो इसमें पेनल्टी को क्वांटिफाई किया है वो किया है 20,000 रुपी और टैक्स इवेडेड whichever is higher. तो यहाँ ये सेंट्रल जीएसटी है 10,000 है, स्टेट जीएसटी में भी 10,000 है, टोटल मिला के 20,000 और टैक्स इवेडेड whichever is higher. राइट. अब यहाँ पे टैक्स इवेजन कैसे क्वांटिफाई होगा, दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन जो सब्जेक्टिव एस्पेक्ट है. बट इतना तो तय हो गया है कि 20,000 इज द मिनिमम अमाउंट विच इज गोइंग टू बी पेनलाइज. नाउ एक और क्वेश्चन आया कि सर हमारे रजिस्ट्रेशन में मतलब एक ही कंपनी के मल्टीपल रजिस्ट्रेशंस हैं और बैंक अकाउंट एक ही है, तो क्या ऐसे केस में भी उनका कोई रिजर्वेशन हो सकता है? लॉ डज नॉट प्रोवाइड एनी बार एज सच to have a single bank account for the multiple registrations. You can always have this. But इसमें कई सारे दूसरे प्रॉब्लम्स हैं जो आपको फर्दर अराइज हो सकते हैं, आपकी अकाउंटिंग में आपको इश्यू हो सकता है. वो सब चीजें इस वेरिफिकेशन से लिंक नहीं है, बट सो फार एज योर कंट्रोल्स आर कंसर्न इट इज ऑफ कोर्स. अगर मल्टीपल बैंक अकाउंट है तो सेक्शन 83 में जब वो प्रोविजनल अटैचमेंट करेंगे, एक रजिस्ट्रेशन में इश्यू है बाकी में इश्यू नहीं है, तो पूरा का पूरा बैंक अकाउंट आपका अटैच हो जाएगा. So you may be affected of the liquidity. So accordingly you have to see. Stock records मैं आपको पहले ही बोल चुका हूँ, yes it can be checked, but physical stock no. So with this, I have completed my session. If you have any query, please let me know. If you have you take a registration, but then later on you add bank accounts. Is that should that be paid? No. The law provides that particular space. अभी तो लॉ अमेंड हो चुका है, रूल अमेंड हो चुका है. बैंक अकाउंट को 15 दिनों में आप रजिस्टर 45 डेज, आई एम सॉरी 45 डेज में आप उसको अपडेट कर दीजिए. देखिए, यस इट्स अ गुड क्वेश्चन. द क्वेश्चन इज कि अगर बैंक अकाउंट अपडेटेड नहीं है तो क्या होगा. ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि मतलब कुछ एबनॉर्मल हो सकता है जस्ट बिकॉज ऑफ दिस पर्टिकुलर थिंग. दे विल आस्क यू टू डू दिस.
ज्यादा से ज्यादा वो क्या है कि आपका नॉन फर्निशिंग विद इन द टाइम लिमिट है तो वो कुछ पर्टिकुलर पेनल्टी आपको लगा सकते हैं, बाकी और इससे ज्यादा कुछ नहीं कर सकते. यू अपडेटेड. Second question is that this is the drive. I mean, private limited companies, in that situation, most of them are genuine because they already KYC is done, registration office, registry office is also done. So उसमें how much impact do you see? इनके केस में कितना impact है ये drive? नहीं, इसमें डरने का जरूरत नहीं है ना. सबसे पहला पॉइंट तो ये कि ड्राइव है, इसका मतलब थोड़ी कि कुछ अलग से कुछ हो रहा है. दे में आस्क द इन्फॉर्मेशन, यू आर प्रोवाइडिंग द इन्फॉर्मेशन, दैट्स ऑल. उनको लगना चाहिए कि सब कुछ ठीक है. ओके. और लगना चाहिए का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ बुक्स से ही लगना चाहिए, इनफैक्ट फिजिकली भी वो ठीक ठाक लगना चाहिए. और फीलिंग आ जाती है. यस. अदरवाइज क्या है कि कई लोग क्या कर रहे हैं कि ठीक है मेरा ये ऑफिस है, मैंने लैपटॉप प्रिंटर रख दिया और ये हो गया. तो दिस इज ऑल्सो नॉट सफाइस. ओके. और दूसरा ये है कि आपके प्लेस पे विजिट किया और पता चला कि वो भी नहीं है, तो वो ऑब्वियसली एक एप्रीहेंशन देगा, रीजन टू सस्पेक्ट देगा, एंड देन दे कैन गो फॉर इन्वोकिंग सेक्शन 29. आप सेक्शन 29 सबसेक्शन 1 को रीड करेंगे तो बोलता है कि रजिस्टर्ड पर्सन मे अप्लाई फॉर द कैंसिलेशन in case if the business is discontinued or business is transferred etc etc. और सेक्शन 29 सबसेक्शन 2 क्लॉज ए को पढ़ेंगे तो बोलते हैं कि प्रॉपर ऑफिसर में कैंसिल द रजिस्ट्रेशन इन केस ऑफ वायलेशन ऑफ द प्रोविजंस प्रेस्क्राइब्ड. और वो प्रोविजन प्रेस्क्राइब्ड है, आप रूल 21 में पढ़िए तो वहां आपको मिलेगा कि बिजनेस डिसकंटिन्यू हो गया. अगर ऑफिसर को लगता है बिजनेस डिसकंटिन्यू, इसने आगे से अप्लाई नहीं किया कैंसिलेशन के लिए, लेकिन प्रॉपर ऑफिसर में कैंसिल दिस. तो No. For this they will not. I consider कि मेरा बिजनेस ठीक है, अभी नहीं चल रहा है, बट मेरे 4 महीने बाद में मेरा चलेगा, तो मैं इसलिए उसको कंटिन्यू कर रहा हूँ. He will issue the show cause notice to you. Don't worry. तो REG 17 में आपको शो कॉज आएगा. ओके. और शो कॉज आते ही फिर वो सस्पेंशन पे लेकर आ जाएंगे आपको. वो सस्पेंड ऑटोमेटिकली हो ही जाएगा. आप फिर आप REG 18 में अपना रिप्लाई दीजिए, उनको ठीक नहीं लगेगा तो 19 में फिर कैंसिल कर सकते हैं. हाँ. बैंक अकाउंट की बात हो रही है, अगर मेरी 4 बैंक से मल्टीपल बैंक अकाउंट और मैं एक को अपडेट कर रही हूँ तो 3 बैंक से मुझे अपडेट करना जरूरी है? नहीं, वैसे तो करना चाहिए, ठीक है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है कि मल्टीपल बैंक. मेरे को आई एम नॉट श्योर REG 01 में क्या वो मल्टीपल बैंक अकाउंट अपडेट करने का फैसिलिटी देता है. टू माय गुड अंडरस्टैंडिंग इट प्रोवाइड सिंगल. राइट. जैसे अभी आप प्रोडक्ट्स में देखेंगे तो 5 ही HSN आपको देता है ना. इट ओनली अलाउज यू टू 5 HSN, राइट. तो वो 5 है, लेकिन मान लीजिए फॉर एन एग्जांपल आपका मॉल है, शॉपिंग मॉल है, एंड यू हैव नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स टू सेल, तो ठीक है आप अपनी प्रायोरिटी पे 5 डाल लीजिए, कोई इलाज नहीं उसका. राइट. सर्विस इंडस्ट्री में बॉस प्लेस नहीं रहते, प्रॉपर प्लेस नहीं रहते, रेसिडेंशियल प्लेस पे वो रजिस्ट्रेशन ले लेती. तो अभी जीएसटी में बीच में क्वेरी आ रहा था कि आपने रेसिडेंशियल एड्रेस डाला है, आप बिजनेस कर रहे हैं, तो वो कितनी लॉ के इसमें आ रहा है? सी जीएसटी लॉ का एक्चुअली उस पर कोई प्रेरोगेटिव नहीं है. ये तो क्या है, लोकल लॉज की बात है. जीएसटी लॉ ने ये कहीं नहीं लिखा है कि रेजिडेंशियल प्लेस पे आप कमर्शियल एक्टिविटी नहीं कर सकते, लेकिन जो आपके लोकल लॉज है वहां से रेगुलेट होता है. आप अगर एग्जैक्टली देखेंगे तो जैसे हर एक स्टेट का अपना एक एस्टेब्लिशमेंट एक्ट है, शॉप एंड एस्टेब्लिशमेंट एक्ट. आप उसकी रिक्वायरमेंट को देखिए. जो आपका नगर परिषद होता है, ओके, नगर पालिका होती है, वहाँ के भी अपने लॉज होते हैं. एक्चुअली वहां से ड्राइव होता है ऊपर कि क्या आप ये कर सकते हैं. जैसे हम लोगों के केस में चार्टर्ड अकाउंटेंट क्या रेजिडेंशियल प्लेस पे अपना ऑफिस कर सकता है. तो अगर मैं एक्सेप्शनल केस में ना जाऊं तो हम भी कॉमर्शियल ही है ना, राइट. तो हमारे को भी वहां नहीं होना, बट दे हैव अलाउड अस इन जनरल. डॉक्टर्स के लिए, एडवोकेट्स के लिए, इन सब के लिए वो अलाउड, लेकिन कई दूसरे ऐसे बिजनेसेस हैं जो अलाउड नहीं है, इवन दो यू आर बिलोंगिंग टू द सर्विस इंडस्ट्री. ओके. लाइक इन माई टेरिटरी, आई बिलोंग टू राजस्थान, तो मुझे पता है राजस्थान में वहां मैंने देखा है कि मैंने जब वहां के लोकल लॉज को रीड किया था तो आई केम टू नो कि उन्होंने हम जैसे सर्विस प्रोवाइडर्स को अलाउ किया है बिजनेस प्लेस पे
बिजनेस रेजिडेंशियल प्लेस पे बिजनेस कंडक्ट करने को, बट जनरल दूसरे सर्विस प्रोवाइडर्स को उन्होंने अलाउ नहीं किया। तो ये पॉइंट जीएसटी लॉ का नहीं है, ये तो लोकल बॉडी लॉज से आपको देखना पड़ेगा कि वहां उन्होंने क्या फ्लेक्सिबिलिटी दी। अभी जो स्पेशल बात कर रहे हैं उसमें ये जो हम बता रहे हैं कि रेसिडेंशियल में कोई अगर बिजनेस कर रहे हैं तो उसके लिए क्या प्रिपरेशन करनी पड़ेगी? खाली जो जीएसटी रजिस्ट्रेशन के टाइम हमने जो डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस किया दैट इज इनफ? यस, यू हैव टू कंपाइल ऑल दीज थिंग्स। आपको तो वो जैसे ही आए आपके पास में तैयार होना चाहिए, है ना, और जितना जल्दी हो उतना ही जल्दी उनको दिखा के क्लोज कर। यस और आपने बोर्ड का पॉइंट तो अच्छा बोला, बोर्ड एंड डिस्प्ले यस यस। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। और ये स्पेशल ट्रायल खाली 2 मंथ्स मतलब टाइम बाउंड के इसके बाद में भी हो सकता है। तो मैंने तो बोला ही है ना कि वो तो लॉ इज नॉट चेंज, आपको जो करना है आप वैसे भी कर सकते हैं। बट ये है कि ये ड्राइव में चल रहा है तो इसका रिपोर्टिंग मैकेनिज्म अपना एक यूनिक मैकेनिज्म है, वो मैं डिपार्टमेंट साइड का मैं आपको शेयर नहीं करता। मतलब आप चाहें तो इसको पढ़ सकते हो, सब कुछ लिखा हुआ है, ओके। बट वो एज सच टैक्स पे व्यू पॉइंट से उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, वो उनका इंटरनल मैकेनिज्म हाउ दे शुड रिपोर्ट। नो, वी आर नॉट बॉदर्ड ऑफ दिस। हाँ, उसमें ये है कि आपको कोई प्रॉब्लम आता है तो उन्होंने बोल रखा है कि आप कंप्लेन कर सकते हैं, ऐसा कर सकते हो, ऐसा कर सकते हो, तो वो ठीक है। ये टाइम में जो भी वेरिफिकेशन होगा उसके लिए कोई स्पेसिफिक डॉक्यूमेंट ऑथराइजेशन लेटर नहीं होगा उनके पास? क्यों, मैंने बोला ना, अगर वो सेक्शन 67 और 71 का है तो उनके पास में ऑथराइजेशन होना चाहिए, दोनों ही केस में ऑथराइजेशन है। आर यू गेटिंग? वो इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं 67 में तो भी उनके पास में ऑथराइजेशन है इधर, बस उसमें INS 01 है 67 में, इधर कोई अपने आप में कोई आपका प्रॉपर नॉमेनक्लेचर नहीं है उसका और कोई उसका फॉर्मेट भी नहीं। एज आई हैव ऑलरेडी सेड कि सेक्शन 71 पे कोई रूल नहीं बना है, तो रूल नहीं है तो फॉर्म भी नहीं है। एनीथिंग एल्स? ओके, Thank you. फ्रॉम the virtual viewers, if you have any sort of queries. Okay. So with this, shall I conclude? Thank you. Thanks a lot. Thanks. I hope you must have enjoyed this. Thank you, everyone. Yes. Don't claim ITC. Just a minute. Is that a This is still recorded. Thank you, everyone. Thank you. offline? Are we offline? No. ITC is your benefit. If you want to claim, you must claim. Next. अच्छा नहीं, उसमें क्या है, आप क्लेम ही नहीं करोगे ना, देखो क्या होता है, मैं आपको वो एडिट डिस्प्ले करोगे तो अपने आप ही रजिस्टर इलेक्ट्रॉनिक वेरिफिकेशन में चला जाएगा। उसका अलग एक ये फ्लैश उसी को क्वेश्चन के अपने तो यूटिलाइज करना अलग चीज हो गया, क्लेम करना अलग चीज। हाँ, तो क्लेम कर रहा आप फॉर्म में दिखाओगे तो क्रेडिट लेटर में जाएगा ही जाएगा। हाँ क्रेडिट से भी है बस तो वो अवेलमेंट हो गया, अभी क्लेम हो गया आपका। This is the claiming of the मेरे पास I don't have any collected GST, so I can't utilize it. I don't take a refund. You are not collected. This amount you are paying to the vendor. Collection correct. But I am not collecting anything from my customer because
ठीक है, मतलब आप ये बोल रहे हो आपका कोई आउटपुट टैक्स नहीं है। हाँ, तो क्रेडिट लेकर तो रखो, बुराई है। बस ITC में डिस्प्ले होगा यस, as अवेलमेंट ऑफ आई, as input ITC, but availment will be by what? By utilized in or नहीं नहीं, क्लेम और अवेलमेंट दोनों एक ही चीज। क्लेम करने का मतलब है जीएसटी एंड पीपी में दिखाया है क्रेडिट लेजर में आ गया, over a period of क्रेडिट लेजर में आ गया, नहीं वो लैप्स नहीं होता है, वो चलते रहेगा। उसका end क्या है? कुछ है, इसका कोई लाइफ नहीं है, इसका इनफाइनाइट लाइफ है, आप जब तक अपना इसका रिफंड नहीं मिलता, रिफंड मिलता है जीरो बेसिस सप्लाई है तो या इन्वर्टेड बेसिस करते हैं, वो तो आपके केस में डिस्काउंट केस में सप्लाई नहीं होता, आप कहीं कर एक्सपोर्टर तो ले ना, Well, you choose not to. you should take the ITC, no, then only आप ITC लोगे मुझे रिफंड ना करो, I want to आप मत लो रिफंड